Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 11 Accountancy Depreciation Provision and Reserve kis yath units mans pur asmunuk tama depreciation sith related yim te topic methods of depreciation, method of charging depreciation im tamam kar asmunuk tama discuss yath units mans karo es ya yath class mans karo es discuss provisions and reserve. There are certain expenses or losses which are related to current accounting period but amount of which is not known with certainty because they are not yet incurred. It is necessary to make provisions for such items for ascertaining the true net profit. For example, a trader who sells on credit basis knows that some of the debtor of the current period would default and would not pay or would pay only partially. It is necessary to take into account such an expected loss while calculating true and fair profit or loss according to the principle of prudence or conservatism. Therefore, the trader creates a provision for doubtful debts to take care of expected loss at the time of realization from debtors. In a similar way, provisions for repairs and renewals may also be created to provide for expected repair and renewal of the fixed assets. Examples of provisions are provision for depreciation, provision for bad debt and doubtful debts, provision for taxation, provision for discount on debtors, and provision for repairs and renewals. It must be noted that the amount of provisions for expense and loss is a charge against profit. It is charged against revenue for the current period. Creation of provisions ensure proper matching of revenue with the expense and hence the calculation of true profits. Provisions are created by debiting the profit and loss account in the balance sheet. The amount of provisions may be either by way of deduction from the concerned asset on the asset side. For example, provision for doubtful debt is shown as deduction from the amount of sundry debtors, and provision for depreciation as a deduction from the concerned fixed assets. Or it can be shown on the liability side of the balance sheet along with the current liabilities. For example, provision for tax and provision for repairs and renewals. ये सोरी परनुक वजह छु ये कि provision युस आसान छु ये गस इंसानस एकस बच्चस समझुन provision छु एस profit मजी create करन पन्ने profit हिस छु थावन बचयित अख हिस छु इस बचयित थावन इम गर्ज खतर कि युस ये unexpected loss युस expected loss आसान छु लेकिन uncertain amount यथ मज आसान छु ये loss या ये युस ये loss या युस ये uncertain amount आसान छु ये compensate करने खतर छु इस पन्ने profit मज थोड़ा बचयित थावन ताकि युस ये loss arise गछि एम खतर हेको वसी compensation करित यूजुअली यम त डेटर्स आसान छु इमदारन वे एस आसान छु इम छु क्रेडिट सील की वजह से अराइज गसान डेटर छु त्रेन कैटेगरी मज इस डिवाइड करन गडनुक छु स कैटेगरी आसान यूज गुड डेटर्स आसान छु दुयम छु आसान यूज यथ पे डाउटफुल डेटर्स आसान छु और त्रीम गो सु यूज बैड आसान क्योंकि बैड डेट यूज आसान छु इस पता है आसान कि गुल ये तैरन वापस किहन डाउटफुल डेटर मज एस शक आसान वुचन यह एक्सपेक्टेड आसान कि युस यह नफर दारन वोल यह दी या न दी यह अत पे तजजुब आसान अम खतर चूंकि यह एक्सपेक्टेड लॉस आसान कि हो सकता है कि यह गछ या एक्सपेक्टेड यह आसान कि यह गछ अम खतर प्रोविजन्स नेसेसरी क्रिएट करान कि पन्ने प्रॉफिट मज थोड़ा बचयित थावन ताकि अगर यह लॉस अराइज ग्रो युस प्रोविजन क्रिएट कोरमुत यह कर कंपनसेट प्रूडेंस कंसेप्ट युस आसान छु तम तत मज वोनमुत कि प्रूडेंस कंसेप्ट वनान कि युस हसा एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट पे फॉर ऑल लॉसेस यम तो लॉस अराइज गसन वल आसान तम लॉस छु जरूरी तम लॉस इन खतर हमेशा प्रोवाइड करन आसान तो बैलेंस शीट में दिखाने का या अकाउंटिंग क्या आसान प्रोविजन सह आसान कि यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस डेबिट साइडस मज हावान These are created by debiting the profit and loss account और बैलेंस शीट में दिखाने के लिए इसके दो तरीके हैं कि बैलेंस शीट्स में कित पट प्रोविजन्स हावन या ते हावो अम एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्टिंग द प्रोविजन्स फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट या जो जिसके लिए हमने ये डेप्रिसिएशन क्रिएट किया ये प्रोविजन्स क्रिएट किए हैं उन एसेट्स को डिडक्ट करके हम इनको दिखा सकते हैं या तो हम क्या करेंगे कि एसेट्स को हम अपने वैल्यू पे दिखाएंगे और इसको प्रोविजन्स को हम लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी के हेड में लिखेंगे The accounting treatment of all types of provisions is almost similar. Therefore, the accounting treatment is explained here by taking the case of provisions for doubtful debts. सब चीज के लिए एक ही है इसलिए as already stated that when business transactions take place on credit basis, the debtors are created and the balance is shown on the asset side.
दीज डेटर्स में भी ऑफ थ्री टाइप्स जो हमने अभी बताया, गुड डेट्स है, डाउटफुल डेट्स हैं या बैड डेट्स है। बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। तो इसकी जनरल एंट्री जो होगी तो वो ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जिसके लिए हम क्रिएट करते हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर एक हम एग्जांपल लेंगे कि ऑब्जर्व एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ बुक्स ऑफ तेहरान ट्रेडर्स ऑन 31 मार्च 2005 इज गिवन बिलो। सन्ड्री डेटर्स हमें 68,000 दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो ये है कि बैड डेट्स प्रूव्ड bad but not required amount is 8,000. Provision is to be maintained at the rate of 10% of debtors. In order to create the provision for doubtful, the following generally is paid. क्योंकि बैड डेट जो हो गए वो हमारे 8,000 हो गए हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 8,000। तो लॉस, ये चूंकि ये लॉस होगा इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये आपको याद रखना होगा, जब हम बैड डेट्स क्रिएट करते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट जो है उसको डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सन्ड्री डेटर्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, और बैड डेट्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोविजंस हमने क्रिएट करने हैं वो किस तरह से हमने क्रिएट किए हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन जो डेटर्स टोटल थे वो 68,000 थे। तो 68,000 में से 10 जो 8,000 है वो बैड है, तो बैड डेट्स पे हम प्रोविजन नहीं क्रिएट करते हैं। बाकी जो रह गए डाउटफुल तो उन पे प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। तो 68,000 में से हम जब 8,000 लेस करेंगे तो वहां पे रह गया है 6,000, तो 6,000 वहां पे रह गया 60,000, तो 60,000 का 10% हमें 6,000 बनता है। तो 6,000 के लिए हमने प्रोविजन क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 6,000। अब रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स हम कहते हैं कि अपने प्रॉफिट में से थोड़ा बचा के रखना ताकि हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को जो है वो उनको स्ट्रेंथ करें और फ्यूचर में जो भी हमें चाहे एक्सपेंशन है या ग्रोथ के लिए जो भी चीजें हमें दरकार है वो हम इन रिजर्व से मीट आउट करें। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मे बी सेट असाइड एंड रिटर्न इन द बिजनेस टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन फ्यूचर needs like growth and expansion or to meet future contingencies such as workmen's compensation. Unlike provisions, reserves are the apportion. ये reserves जो है reserves हम क्रिएट करते हैं जब प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो reserves नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं appropriations of profit, और जो प्रोविजंस है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोविजंस हमें क्रिएट करने हैं अगर लॉस भी अराइज हो जाए, लेकिन रिजर्व्स हम प्रॉफिट में आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो रिजर्व्स जो है लाइबिलिटी के लिए, नो लाइबिलिटी के लिए नहीं क्रिएट किए जाते हैं। ये बात जरूरी यहाँ पे है कि रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं ये नो लाइबिलिटी के लिए नहीं है। प्रोविजंस नो लाइबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं कि एक लाइबिलिटी होने वाली है, हालांकि हमें पता नहीं है कि अमाउंट उसका क्या है, लेकिन लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी के लिए हमें अपने प्रॉफिट में से रखते हैं, तो वो उसको हम प्रोविजन क्रिएट कहते हैं। लेकिन ये हम इस गरज से रखते हैं कि जो भी लाइबिलिटी अराइज हो जाए फ्यूचर में या जो भी काम हमें अराइज हो जाए फ्यूचर में उसके लिए हम अपने प्रॉफिट में से थोड़ा बचा के रखेंगे, तो इसको हम रिजर्व्स कहते हैं। रिजर्व इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज इट इज नॉट मीन टू कवर एनी नो लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉस इन फ्यूचर। However, retention of profit in the form of reserve reduces the amount of profits available for distribution among the owners. It is shown under the head reserves and surplus on the liability side of the balance sheet and the capital. तो ये बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं या वर्कमेंस कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल रिजर्व्स हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिजर्व्स हैं, इसको हम दूसरी कैटेगरी से हम भी इसको डिफाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जनरल रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। तो जनरल रिजर्व्स जो है वो जनरल है, उनमें कोई मार्क नहीं लगा होता है कि किसके लिए है, लेकिन जब हम रिजर्व किसी मकसद के लिए रखें तो उसको हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं, जिसको इस तरह से हम डोनेशन को डिफाइन करते हैं। एक तो है जनरल डोनेशन है, दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स? द फर्स्ट इज base of nature. Provision is charged against profit and reserve is an appropriation to profit. Provisions are created for no liability or expense pertaining to current accounting period, the amount of which is not certain. And reserves, it is made for strengthening the financial position of the business. Some reserves are also mandatory under law, but reserves are not created for a liability, no liability. Effect on taxable profits, it reduces the taxable liability. It has no effect on अनटैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो रिजर्व की प्रेजेंटेशन द बैलेंस शीट, ये दो तरीके से हम दिखा सकते हैं। एक तो ये है कि हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड में, तो एसेट को डिडक्ट करके
और लायबिलिटी साइड में हम इसको दिखाएंगे अंडर करंट लायबिलिटी, तो वो दिखाने का तरीका है। लेकिन जो रिजर्व्स हैं इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड आफ्टर कैपिटल अमाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। Elements of compulsion: creation of provision is necessary to ascertain the fair profit or loss in the compliance of prudence concept. It must be made even if there are no profits. जो हमने अभी कहा कि अगर लॉस भी अराइज हो जाए तो प्रोविजंस क्रिएट करने ज़रूरी है। Generally, creation of reserve is a discretion of the management. Reserves can't be created unless there are profits. However, in certain cases, law has stipulated for the creation of specific reserves such as debenture redemption reserves हैं। तो ये कभी रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ कंपनीज में कुछ केसेस में कंपलसरी रिजर्व क्रिएट करना है, लेकिन प्रोविजंस जो है वो क्रिएट करने हैं बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। यूज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड: रिजर्व्स कांट बी यूज्ड, दिस कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। कि कभी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, चूँकि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं to distribute the profits, to distribute it as dividend among the partners, among the shareholders। लेकिन रिजर्व्स को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, डिविडेंड के लिए। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स: जनरल रिजर्व्स, when the purpose of which reserve is not when the purpose for which the reserve is created is not specific, it is called general reserve, जो हमने अभी कहा। It is also termed as free reserves because the management can freely utilize it for any purpose। जनरल रिजर्व द स्ट्रेंथ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो जनरल रिजर्व जो हमने क्रिएट किए हैं उनमें कोई स्पेसिफिक मार्क नहीं होता है, तो वो फ्री रिजर्व होते हैं, तो मैनेजमेंट जहां भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व जो है, स्पेसिफिक रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। एग्जांपल्स आर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर स्टेबलाइज और मेंटेन डिविडेंड रेट। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, ये एक रिजर्व है, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर क्लेम्स ऑफ द वर्कमैन। And investment fluctuation fund is created to make for decline in the value of investment। तो इसी तरीके से debenture reserve reserve which is created to provide funds for adoption of debentures। तो इन पे मार्क लगा है, ईयर मार्क है कि ये डेबेंचर के लिए है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए है, ये वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड के लिए है, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए है। तो इन पे मार्क लगा हुआ है, इसलिए हम इनको स्पेसिफिक रिजर्व्स कहते हैं। तो जनरल रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व्स होते हैं, उन पे कोई स्पेसिफिक मार्क नहीं होता है। Reserves are also classified as revenue reserves and capital reserves. Revenue reserves are created from revenue profits which arise out of the normal operations of the business. Examples of revenue: general reserve है, workman's compensation है, investment fluctuation fund है, dividend equalization। जो reserves हमने अपने प्रॉफिट में से क्रिएट किए हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशन हमारे बिजनेस में है। इन अदर वर्ड, जो भी रिजर्व्स हमने रेवेन्यू प्रॉफिट से या जो भी हमने रेवेन्यू रिसोर्स से क्रिएट किए हैं, वो हमारा जो है वो हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। कैपिटल रिजर्व जो है वो आउट ऑफ व्हेन रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स व्हिच डू नॉट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कभी कभार आपने कोई एसेट बेचा तो उसमें प्रॉफिट हो गया, तो दैट इज नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट में से जब आप अपना पैसा बचाएं या प्रॉफिट में से कुछ शेयर बचाएं कैपिटल प्रॉफिट में से, तो उस रिजर्व को हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ capital losses or issue of bonus shares in case of companies। Examples of capital profits which are treated as capital reserves, whether transferred or as such or not, are premium on issue of debentures, shares or debentures, profit on sale of fixed assets, profit on reduction of debentures, profit on revaluation of fixed assets and liabilities, profit prior to incorporation, profit on reissue of forfeited shares। ये सारे कैपिटल रिजर्व्स हैं, ये सारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। इन कैपिटल प्रॉफिट्स में से जब भी आप रिजर्व क्रिएट करोगे तो वो कैपिटल रिजर्व्स होंगे। आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया या डेबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया, तो वो जो आपका रेवेन्यू आ गया वो कैपिटल रेवेन्यू है। उस कैपिटल रेवेन्यू में से अगर आपने थोड़ा बचाया, रिजर्व क्रिएट किया, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व होगा। अब डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व क्या है? सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है, रेवेन्यू प्रॉफिट में से रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं और कैपिटल प्रॉफिट में से कैपिटल रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। रेवेन्यू रिजर्व जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथिंग के लिए किए जाते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस, लीगल रिक्वायरमेंट और अकाउंटिंग प्रैक्टिस की वजह से किए जाते हैं, कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस की वजह से या लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से हमें वो रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उन पर्पस की वजह से क्रिएट करने पड़ते हैं। यूजेज: स्पेसिफिक रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द earmarked purpose, while a general reserve can be utilized for any other purpose including distribution of dividend।
It can be utilized for the specific purpose as provided in the law in force, for example, to write off capital losses or issue of bonds. जो कैपिटल रिजर्व हमने क्रिएट किए हैं वो लॉ उन पे बाइंड है कि वो हम किसी खास स्पेसिफिक पर, मिसाल के तौर पर अगर हमें प्रीमियम हो गया जो हमने कैपिटल रिजर्व कैपिटल जो है, या जो हमें कैपिटल रिजर्व हो गया, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी खास मकसद के लिए जिस तरह से लॉ ने हमें बताया है उसी के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी किसी और मकसद के लिए हम क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह से प्रीमियम का मसला है कि प्रीमियम जो हमने प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस पर लॉ की बाइंडिंग है, वो कुछ खास मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, why are reserves created? What is the importance of reserves? A business firm may consider it proper to set up some mechanism to protect itself from the consequences of unknown expenses and losses it may be required to bear in future. It may also regard it as a more appropriate in certain cases to reduce the amount that can be drawn by the proprietors as profit in order to conserve business resources to meet the certain significant demand in the future. दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अपने फ्यूचर में जो कॉन्सिक्वेंस अराइज हो सकते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, उनमें कंपनसेशन के लिए हमने अगर अपने प्रॉफिट में से थोड़ा बचा के रखा है तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंस है। दूसरा ये है कि कभी कभार प्रॉफिट कम दिखाने के लिए, ताकि डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तो उसके लिए भी हम रिजर्व जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो the amount so set aside may be made for the purpose of meeting future contingencies, strengthening the general financial strength of the business, and redeeming a long-term liability like debentures, etc. Now there is a third term that is known as secret reserves. Actually, these reserves are reserves that are secretly created by the management that are not shown in the balance sheet. Secret reserve is a reserve which does not appear in the balance sheet. It may also help to reduce the disclosed profits and also the tax liability. The secret reserve can be merged with the profits during the lean periods to show the improvement. तो ये टेक्निकल टर्म है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजमेंट मे रेस्टोर टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व बाय चार्जिंग हायर डेप्रिसिएशन देन रिक्वायर्ड। तो ये तरीके हैं कि किस तरह से हम सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करते हैं जो बाकी लोगों को या शेयर होल्डर्स को भी पता नहीं होता है। डेप्रिसिएशन अगर हमने 10,000 क्रिएट करना है, हमने 12,000 क्रिएट कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा 2,000 हमने क्रिएट किए, ये एक रिजर्व टाइप ऑफ रिजर्व है, लेकिन सीक्रेटली हमने क्रिएट किया है, किसी को पता नहीं है। तो इस तरीके से हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट की। इट इज टर्म्ड एज सीक्रेट एज इट इज नॉट नोन टू द आउटसाइड स्टेक होल्डर्स। सीक्रेट रिजर्व्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ undervaluation of inventories, charging capital expenditure to profit and loss account, making excessive provisions for doubtful debts, showing contingent liability as actual liability. तो ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के कुछ तरीके हैं। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विद इन रीजनेबल लिमिट इज जस्टिफाइबल ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सपेंसी, prudence and preventing the competition from other firms. तो ये कुछ जो है यह फाइनेंशियल बेसिस या दलाइल कि कैसे हेको सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करित। क्या टर्म यम चैप्टरन मज वन तम हेच, डेप्रिसिएशन क्या गो, डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या गो, ओरिजिनल कॉस्ट क्या गो, यूजफुल लाइफ क्या गई, डिप्लीशन, ऑब्सोलेंस, अमोर्टाइजेशन, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, written down value method, reducing balance method, diminishing value method, straight line method, fixed installment method, asset disposal account, accumulated depreciation, provision for depreciation account, reserves, provision, capital reserve, revenue reserve, general reserve, specific reserve, secret reserve, provision for doubtful debts. तो ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हमने इस यूनिट में पढ़ी, और इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या गए। समरी विद रेफरेंस टू द लीव। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये टॉपिक आज कंप्लीट किया। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अलावा जो प्रोविजन रिजर्व्स हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।